मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। Greetings in the name of Jesus Christ. खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको सलामत रखे। May God bless you and be with you. मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद ने गुजरे हफ्ते में गुजरे दिनों में आप सबकी निगाहबानी और हिफाजत की I believe that the Lord has protected you throughout the weeks, और खुदा ने बहुत सारी बरकत से आपको नवाजा and God has blessed you with so many other blessings. और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने फिर हमें मौका बख्शा कि आपके साथ हम खुदावंद के कलाम को शेयर करें। And I am so thankful of the Lord that He gave us another chance to come on this live with you all and share the Word of God. मैंने बहुत सारे बहन भाइयों की कॉल्स रिसीव की और उनके मैसेज रिसीव किए हमारे टॉक शो के वसीला से, और हमारे जो यहाँ पर लोग आते हैं टेस्टमनी शेयर करते हैं, कलाम शेयर करते हैं, उनके वसीला से लोगों ने बरकत पाई। I've received so many calls and messages from you all, from our brothers and sisters, sharing their testimonies and sharing that they are blessed through the talk show and the testimonies they hear on this platform and the messages they hear. और मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ उनके लिए कि जो लोग देखते हैं वो ज़रूर इसी तरह अपने मैसेजेस और अपने टेस्टमनीज हमारे साथ शेयर करें। And I humbly request that keep sharing the word, keep sharing the good news that you hear on this platform. Don't just keep it to yourself, but show it and share it with other people as well. ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही के वसीला से बरकत पाएं So other people can be blessed through your testimony. और हमारे लिए कंटिन्यू दुआ अपने घरों में करें ताकि हम जो खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं फिजिकली, रूहानी और जिस्मानी तौर पर हम उसे और भी अच्छे तरीके से कर सकें। And keep us all in your prayers so that the service, the ministry that we are doing, we can continue it and expand it. और खुदा हमारे लिए रास्ते खोले And the Lord would open doors for us. और हम बहुत सारे लोगों की मुश्किल और मुसीबत में उनके साथ खड़े हो सकें। And we would be able to stand with people in their problems. सो आइए हम दुआ करें और खुदा उनके कलाम की तरफ हम बढ़ें। So let us pray and start listening the word of the Lord. खुदाए कद्दूस और खुदाए जुल जलाल तेरा शुक्र हो। Heavenly Father, we thank you. खुदा आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए तेरा शुक्र हो जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी। Lord, we thank you for this beautiful morning that you gave us in our lives. आज खुदा तेरे कलाम में से जो तेरा पाक रूह खुदा हमारी रहबरी और रहनुमाई करे वो तेरे लोगों के लिए बायस बरकत हो। Lord, we pray that whatever we hear from your word today, it would be blessed for all of us. खुदा मेरी होंठ, दिलो दिमाग और जुबान का जिम्मा ले ताकि खुदा जो कुछ मैं बोलूं खुदा तेरे पाक रूह की मर्जी के मुताबिक हो। Lord, I pray that take over our tongues, our words, so that whatever we would speak out of your spirit in your guidance. और इस तरह स्मरणा के लिए जब वो इंटरप्रेट करती है बहुत सारे हमारे बहन भाइयों के लिए जो उर्दू को नहीं समझते तो वो भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। Lord, I give Smyrna as well in your hand. Those who does not understand English, Lord, that she would be able to translate for them as well. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, हमारी दुआ को सुन और कबूल कर मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से। Lord, we thank you and we pray that whatever we ask it in your name. Amen. आमीन। सो आइए हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े। मेरे साथ एक हवाला निकालें। So if you can open with me मुकाशफा उसका 14 बाब 6 और 7 आयत। Revelation chapter 14 verse 6 to 7. सो मैं कलाम मुकद्दस में आपके लिए पढ़ूंगा इस हवाले को। यूं लिखा है, मुकाशफा 14 बाब उसकी 6 और 7 आयत। यूं लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। आमीन। Then I saw another angel flying in mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens and the earth, the sea, and the springs of water." खुदा उनके कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। May the word of God bless us all. सो आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदावन का फरिश्ता जो आसमान पर
यूहन्ना अर्फ को दिखाई दिया और उसने उस खुशखबरी को सुना, वो मेरे और आपके लिए क्या खुशखबरी है। So today we will hear from the word of God about this angel that gave the good news to John the apostle, and we want to know what that good news is. इस कलाम का टॉपिक है अबदी खुशखबरी। The topic that we're going to talk about today is eternal good news. कलाम कहता है कि हर कौम और हर कबीला और अहले जुबान, कोई इसमें तफरीक नहीं है, कोई इसमें नफी नहीं है, बल्कि जमीन पर जितने कबीले, जितनी अकवाम और जितने लोग हैं, उन सब के लिए खुदावंद का ये कलाम है। Because the word of God says, he said in a loud voice, fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Because every nation, every tribe and language and people worship him. Everyone worship him. It doesn't talk about a certain tribe or a certain language. ये किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक कौम के सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे जहान के लिए। It's not just for one person. It's not just for Christians. It's for the whole world. आज हम इस खुशखबरी के मुतालिक 4 किस्म की खुशखबरियां हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि किस तरह से हमें खुदा उनका कलाम सिखाता है। So today we will hear about four good news. 4 type of good news. नंबर 1, Number 1, सुलह की खुशखबरी। the good news of peace. नंबर 2, यीशु मसीह की खुशखबरी। The good news of Jesus. और नंबर 3 है खुदा के फजल की खुशखबरी। Number 3, the good news of God's grace. और नंबर 4 पर है मेल मिलाप की खुशखबरी। And number 4 is the good news of fellowship. सो ये 4 किस्म की खुशखबरियां जो हैं मुख्तलिफ तरीके से हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, हमारे लिए किस तरह बायस बरकत है। So these 4 kinds of good news we want to see from the word how they bless us. खुशखबरी तो एक ही है जो कलाम मुक़द्दस हमारे पास है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। There is the ultimate good news is the word of God for us. लेकिन कलाम मुक़द्दस में से किस तरह हम उन खुशखबरियों को जो हमारी जिंदगी में अप्लाई करती है, हमारे लिए बायस बरकत है, हमें उस हमेशा की जिंदगी की तरफ लेके जाती हैं, वो हमें अपने लिए तलाश करनी है। But out of the word of God, what are the good news? What type of good news are there that actually lead us towards the eternal good news, towards the eternal life? नंबर 1, अगर आप देखें सुलह की खुशखबरी, तो सुलह के मुतालिक अगर आप देखें तो एक हवाला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इफिसियों 6 बाब उसकी 15 आयत। So if we see the good news of peace, we will see here in Ephesians chapter 6 verse 13 to 14. इफिसियों 6 बाब उसकी 15 आयत में यूं लिखा है, If we see Ephesians chapter 6 verse 15, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. सुलह की खुशखबरी, The gospel of peace, good news of peace. कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। The word of God says, blessed are those who bring peace, for they will be called the sons of God. सुलह की खुशखबरी, सुलह हमारे लिए कितनी हमारी जिंदगी में जरूरी है कि अगर हम देखें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह को सुलह और सलामती का शहजादा कहा गया है। The gospel of peace, if we see how important it is for us, the good news of peace, because the Bible says that Jesus is the Prince of Peace. और जब हम उसके फॉलोअर हैं, उसके लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो जब सुलह और सलामती का शहजादा है, तो हम जो उसके बेटे और बेटियां हैं, हम इस खुशखबरी को क्यों ना दूसरे लोगों तक लेकर जाएं। When he is the Prince of Peace, then we as his sons and daughters, we as his people, it's our responsibility to share peace with others. The peace we carry, take it to others. और सुलह और सलामती का सबूत, इस कदर बड़ा सबूत खुदा यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में दे दिया है कि इस तरह का कोई और कर नहीं सकता।
And the evidence of peace that the Lord has given us, it's greater and no one can ever give it to us. कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कहा, आए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं. Because on the cross, Jesus said, Father, forgive them for they don't know what they're doing. और ये कितना बड़ा प्रूफ है कि एक इंसान मौत के साथ लड़ रहा है, तकलीफों और मुश्किलात से गुजर रहा है, पूरे जिस्म से खून निकल रहा है, पूरा जिस्म छन्नी है, लेकिन फिर भी दूसरों के लिए दुआ कर रहा है. And what a great love he carried for us, that a person, he is completely bleeding, he's completely wounded, but he's still asking peace, asking forgiveness for those who has hurt him. और अगर थोड़ा आगे जाके देखें तो खुदावंद का बंदा यीशु मसीह का शिगर जब शहीद हो रहा था तो लोग उसे पत्थर मार रहे थे और वो दुआ कर रहा था कि आए खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा. And if we go further in the history of Jesus, when we go further, we see Stephen, when he was being stoned, he said, Father, forgive them. Don't blame it on them. They don't know what they're doing. क्योंकि हम उसके फॉलोअर हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं. जब सुलह और सलामती का शहजादा है तो हमें भी सुलह के पैगाम को दूसरे लोगों तक लेकर जाना है. When he is the Prince of Peace, when he wants to forgive others, he doesn't want to fight, but he wants to bring peace. It's our responsibility to bring peace as well. ये पहला हमारी जिंदगी का एक अच्छा और खूबसूरत असूल है जो हमें हमेशा की जिंदगी का रास्ता दिखाता है. That's a first and very important principle of life. The gospel of peace, bringing peace to others. और ये आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी है जो तफरीके और लड़ाइयां और बुग़्ज़ और हसद और तमाम तरह की नफरतों को खत्म करके सुलह का पैगाम लेकर जाते हैं. And this is a very huge victory over all the jealousy, all the division, all the fights and all the wars. It's really important for us to carry peace, to love one another and to forgive one another, and it will bring us back into unity. और आप खुदा के बेटे कहलाते हैं जब सुलह की खुशखबरी दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं. And you are called sons and daughters of God when you carry the good news to other people. और अगर आप दूसरी तरफ आ जाए फिर यीशु मसीह की खुशखबरी मेरे और आपके लिए क्या है? And if we see the good news of Jesus, what is the good news of Jesus? मेरे साथ निकालें पहला तसलीकियों. If you will open with me 1 Thessalonians. पहला तसलीकियों उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत. 1 Thessalonians chapter 3 verse 2. कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और हमने तमोथियुस को जो हमारा भाई और मसीह की खुशखबरी में खुदा का खादिम है इसलिए भेजा कि वो तुम्हें मजबूत करे और तुम्हारे ईमान के बारे में तुम्हें नसीहत करे. आमीन. We sent Timothy, who is our brother and co-worker in God's service in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith. मसीह की खुशखबरी साथ में इस बात को हाईलाइट किया गया कि मसीह की खुशखबरी क्या है? खुदा का कलाम. What is the good news of Jesus? It is the word of God. और खुदा का कलाम, खुदा का बंदा तमोथियुस दूसरे लोगों तक लेकर जाता है. And Timothy takes the word of God, the gospel of Christ, the good news of Jesus to others. और कहता है कि वो तुम्हें इसमें मजबूत करे और तुम्हें नसीहत करे ताकि तुम अपनी जिंदगी में खुदावंद के साथ और मजबूत होते जाओ. And it says that we have sent Timothy so that he would encourage you in the gospel of Christ, strengthen you, and it will encourage you and strengthen your faith. क्योंकि जब आपके पास खुदा के कलाम की खुशखबरी है जो मसीह यीशु के वसीला से हम तक पहुंची, तो फिर आप अपनी जिंदगी में फतह याबी हासिल करते जाएंगे. Because if you have the good news of Jesus, if you have the good news of the Lord, you will be encouraged in your faith and you will grow towards the eternal life. अगर आपके पास ये खुशखबरी है तो आप अक्ल और दानिश में बढ़ते जाएंगे और आप खुदावंद में मजबूत होते जाएंगे. Because if you have this good news, you will grow in your wisdom and you will grow in your faith. खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद का खौफ
दनाई का शुरू है, और वो कहां से मिलता है? खुदा के कलाम से। The word of God says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And where do you get the wisdom? How do you feel the fear of the Lord? When you read the word of God. दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। David says, I've kept the word of God. Lord, I have kept your word. I have hidden it in my heart so that I would not sin against you. यही कलाम की खुशखबरी है कि जब हम इस कलाम को लेकर चलते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। This is the good news of Jesus. When we carry the word of God, when we carry this word, we are successful in our lives. कभी भी खुदा के कलाम को पीछे ना करें। ये यीशु मसीह की खुशखबरी जो मुझ तक, आप तक पहुंची है, हमें ये दुनिया के कोने-कोने में पहुंचानी है। Never put the word of God behind you. Never ignore it. For this is the good news that will carry us through our lives. कलाम कहता है, बोझ के थके और मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और फुरतन। The word of God says, all those who are tired and weary, come to me, take my yoke, because my yoke is light and easy. ये कितनी बड़ी हमारे लिए खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी है कि वो जिंदगी का कलाम और जिंदगी का पैगाम हमें देती है। How great is this good news for us that he gives us, that the good news of life, the good news of eternal life, the good news of love and encouragement. और कलाम कहता है, प्यासो मेरे पास हो, जिसके पास नहीं पैसा वो मुफ्त ले। And the word of God says, those who are thirsty, come to me, and those who don't have money, take it free. मुझसे सोना लो ताकि तुम अमीर हो जाओ। He says, take from me. खुदावंद का कलाम आपको दावत देता है। The word of God invites you. और खुदावंद का कलाम जो हमारे पास, मेरे और आपके पास है, ये खुदावंद की बहुत बड़ी यीशु मसीह की खुशखबरी है जो हम तक पहुंची है। The word that we have today, it's a very, very big news that the Lord has given us. और अगर आप अगले हिस्से को देख लें तो लिखा है कि खुदा के फजल की खुशखबरी, तीसरा पॉइंट जो है हमारा है। If we see the third good news, it's the good news of God's grace. खुदा के फजल की खुशखबरी। The good news of God's grace. अगर मेरे साथ अमाल की किताब निकालें, If you will open with me Acts अमाल उसका 20 बाब, Acts chapter 20. जी अमाल 20 बाब और उसकी 24 आयत अगर आप पढ़ें, Acts chapter 20 verse 24. सो ये लिखा है कि लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबिल इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। आमीन। However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Good news of God's grace. कहता है कि मैं अपनी जान को अजीज नहीं रखता। He said that I do not care about myself. I do not keep my life precious to myself. कहता अब मैं जिंदा न रहा बल्कि वो मुझ में जिंदा है। It's not me who is alive, but he is living in me. कलाम में लिखे तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। The word of God says that you are not your own, but I have bought you by the price. इसलिए अपने बदनों से खुदावंद को जलाल दो। That's why from your bodies give glory to the Lord. और खुदावंद का बंदा पालूस कहता है कि मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। And Paul said that I consider my life worth nothing. मेरे नजदीक किसी चीज की, जब इंसान अपनी जान की अहमियत नहीं रखता तो उसके नजदीक उसके माँ बाप बहन भाई भी उसके नजदीक वो अहमियत नहीं रखते। When a man does not consider his life precious, his family is not that precious to him as well. अगर आप अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम को अवलियत देते हैं तो आप खुदावंद से बरकत पाते हैं। When you put God first in your life, you will be blessed. क्या कहता है कि लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबिल
उसके क्या अपना दौर और खिदमत जो खुदावंद यीशु मसीह से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। कितना जरूरी है हमारे लिए कि खुदा के कलाम की, उसकी खुशखबरी, उसके फजल, उसके उसके रहम की गवाही हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। However, I consider my life worth nothing. He said, my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. और अगर आप शागिर्दों की जिंदगी को देखें तो उन्होंने अपनी जिंदगियों से प्यार नहीं किया, उन्होंने अपनी बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से प्यार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुदा उनकी खिदमत को अहमियत दी। And if you see the life of disciples, they did not put their family first. They did not put their wives first. They did not put their children first. They put the word of God first. They put the ministry of God, the ministry of Jesus first. They put the purpose that the Lord had on their lives first. इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने घर से आप प्यार ना करें, It doesn't mean that you would ignore them completely, क्योंकि वो खुदा ने आपको बरकत दी है। because they are the blessing of God to you. लेकिन अगर आप खुदा के कलाम से और खुदा की खिदमत से ज्यादा अहमियत देते हैं तो कलाम में लिखा है जो अपने माँ और बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। But if you value them more than the word of God, if you value them and listen to them and put them before God, then the word of God says that those who love their mom and who love their parents and their children more than me, they're not worth me. जो अपने They're not बीवी worth और for me. बच्चों को, बेटे और बेटियों को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। Those who consider their family more than me, they're not worth serving me. जब उसने हमें सब चीजों से ज्यादा अहमियत दी तो हमें भी जरूरत है कि अपनी जिंदगी में सबसे पहला दर्जा खुदावंद को दें। Since he gave us so much importance that he lived for us, he died for us, he rose up for us, then it is our job to put him first in our lives as उस well. बाप ने जिसने अपना बेटा मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया ताकि उस सलीब पर बलिदान हो, उस लानती मौत को गुवारा करे ताकि हमें उस मौत से निकाल कर जिंदगी में लाए, तो फिर हम क्यों उससे ज्यादा किसी और चीज को अहमियत दे सकते हैं? Bible says that he gave his only begotten son so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. If he gave his only begotten son so that we can live, then why can't we put him first in our lives? खुदावंद का बंदा कहता है, खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफी है, David says, Lord, your grace is enough for me. क्योंकि उसके फजल के तहत ही हम रहकर अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। Because it's because of his grace that we can carry on in our lives. अगर उसका फजल हम पर नहीं तो शायद एक सांस आई और दूसरी हम ले सकें या ना ले सकें। If it's not his grace, then we can be killed because we are so sinful. इसलिए कलाम में लिखा है कि खुदा के फजल की खुशखबरी, पालूस कहता है कि मैंने अपनी जान को अजीज नहीं रखा, मैंने अपने घराने को अजीज नहीं रखा, मैंने किसी चीज को अहमियत नहीं दी, बल्कि खुदावन से वो जो मैंने खुशखबरी पाई है उसके फजल की गवाही मैं जगह बजगह जाकर देता रहा। That's why Paul said that I consider myself, I don't consider my life important. For me, my only aim is to put God first, is to fulfill the calling that is on my life. खुदावन के बंदा पालूस ने बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त की। Paul went through so many things. बहुत दफा उसने कोड़े खाए, So many times he was beaten. वो जेलों में रहा, He stayed in prison. वो समुद्री मुसीबतों में पड़ा, He went through so many problems. लेकिन उसने खुदावन के फजल की खुशखबरी को रोका नहीं, बल्कि उसने जगह जगह उसको फैलाया। But he carried on with the word of God. He kept spreading the word of God. मेरे अजीजों, आज जबकि हमारे पास ये कलाम की खुशखबरी है, My brothers and sisters, since we have this good news of Christ today, तो हमें देखना है हम इस खुशखबरी को किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं। so it's our job to see how are we going to spread this word to other people. क्या हम सुलह के जरिए ये खुशखबरी पहुंचाते हैं? Are we going to share the gospel through peace? क्या हम इस खुशखबरी को जो यीशु मसीह ने हमें दी है लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को महफूज करते हैं, बचाते हैं? क्या
Are we going to share the good news of Jesus Christ through encouraging people? क्या हम उसके फजल की खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाते हैं और उसके फजल को बयान करते हैं कि उसने किस तरह हमसे प्यार किया? Or are we going to share his good news of grace? Are we going to share his grace with others, forgive others, love others? And through that, are we going to share his good news? और एक अगर हवाला मेरे साथ आप और निकालें, दूसरा कुरिन्थियों का 5 बाब और उसकी 17 और से 19 आयत तक. If you will open with me 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 19. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मेल मिलाप की खुशखबरी मिलती है. And here we see the good news of fellowship. हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखने से किस तरह बरकत पाते हैं? How are we blessed when we are in fellowship of each other? ये हवाला जरा पढ़ेंगे हम. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब 17 से 19 आयत तक. If we will read 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 19. ये लिखा है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की. आमीन. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. All this is from God, who reconciles us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, to continuing people's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. The message of reconciliation, the good news of fellowship. हम यीशु मसीह में क्या है? नई मखलूक हैं. We are a new creation in Christ. हम नए लोग हैं. We are new people. हमने पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया. We have taken off the old वो humanity. गुनाह आलूदा जिंदगी को हमने पीछे छोड़ दिया. We have left our sins behind. हमने यीशु मसीह को अपना लिया. We have accepted Christ. और कलाम में लिखा है कि तेरे गुनाह कितने भी किरमजी क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की मानद सफेद कर दूंगा. And the word of God says that no matter how great is your sin, I can still wash it and make it white as snow. कितने भी गुनाह तूने कर लिए हैं, लेकिन जब तू मेरे पास आता है तो मैं ये कुदरत रखता हूं कि उन्हें धोकर साफ कर दूं और तुम्हें नई जिंदगी अता करूं. No matter how many times you have sinned, I have the power to clean it and make you white as snow. और जब हम उसमें शामिल हो गए तो अब हम नई इंसानियत पहन चुके हैं, हम नए इंसान बन चुके हैं, नई रूह मिल चुकी है और हमें एक नई जिम्मेदारी मिल चुकी है. And once we are reconciled with Jesus, once we are in fellowship with Jesus, once we are in him, we are new and we have wore the new humanity he gives us. लिखा है कि मसीह के वसीला से अपने साथ मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की. क्या किया उसने? वो खिदमत जो उसे मिली थी, मेल मिलाप, इंसान को और खुदा का आपस में मिलाप हो गया बेटे की वजह से, तो अब वो खिदमत उसने हमें दी कि आप भी दूसरों के साथ इसी तरह मेल मिलाप करो और लोगों को खुदा उनके पास लाओ. And it says all this is from God, who reconciles us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. This is the ministry of reconciliation. This is the ministry of fellowship, to stay in fellowship with each other. That God came, that God wanted fellowship with us. He wanted to reconcile with us. क्या ये मेल मिलाप की खुशखबरी आप दूसरे लोगों तक लेके जा सकते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी हमें मिली है. Can you take this good news of fellowship, this ministry of reconciliation to others? Because this is our responsibility. This is our job. क्योंकि जब तक हम अपने दिलों से कदूरते, नफरतें और दूसरों के लिए कीड़े निकालना और दूसरों के लिए अपने दिलों में बिद्दतें रखते हैं, कभी भी खुदा से बरकत नहीं पा सकते. When we keep grudges, when we keep things in our hearts for other people, we keep things in our minds and in our hearts, in our thoughts for other people, we say bad things about other people, we can never carry the ministry of reconciliation. We can never carry the good news of fellowship to others. जितना वक्त आप दूसरों के कीड़े निकालने में लगाते हैं, वही वक्त आप carry the ministry of reconciliation. We can never carry the good news of fellowship to others. जितना वक्त आप दूसरों के कीड़े निकालने में लगाते हैं, वही वक्त आप दुआ में और खुदावंद के कलाम को फैलाने में लगाएं, तो शायद आप खुश नसीब इंसान होंगे दुनिया में. The time you spend in saying bad things
and taking out faults in other people, if we'll spend the same amount of time in the Word of God, in the presence of God, in prayer and in worship, maybe our lives will be completely changed. कि कलाम कहता है कि अगर तू दूसरे की आंख से तिनका निकालना चाहता है तो अपनी आंख का शतीर पहले जरूर निकाल. Because the Word of God says that you are finding faults in other, but you don't see fault in yourself. इसलिए अजीजों, इन तमाम कदूरतों नफरतों से निकल आए बाहर और खुदावंद को फॉलो करें और खुदावंद के कलाम को, इस खुशखबरी को जो मिली है, हमें जिम्मेदारी मिली है कि ये जिम्मेदारी अब हमें मिली है, हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं. And if we, my brothers and sisters, if we just take our mind out of that dirt and we will start serving the Lord and we would give ourselves to the Lord completely and forgive others, we can carry this ministry of reconciliation, because the Bible says that He has given us the ministry of reconciliation. एक आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे. We'll read the last verse. मरकस 10 बाब उसकी 29 से 31 आयत तक. Mark chapter 10 verse 29 to 31. 10 बाब उसकी 29 से 31 आयत तक हम पढ़ेंगे. तो कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातिर और अंजील की खातिर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए. घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी. लेकिन बहुत सारे अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल. Truly I tell you, Jesus replied, no one has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution, and in the age to come eternal life. But many who are first will be last, and the last will be first. मेरे अजीजों, खुदा उनका कलाम कहता है कि कौन है जिसने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, अपने बच्चों को, खेतों को, बीवी बच्चों को, अपने खानदान को छोड़ा है, और अगर किसी ने किया है तो वो 100 गुना पाएगा. The word of God says, who has left home or brothers and sisters or mother or fields for me? And if someone has done, they will get 100 times more. और इसीलिए लिखा है कि बहुत सारे अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे. And that's why it says that many who are first will be last and last will be first. क्योंकि कलाम में लिखा है, जैसे 10 कुमारियों की कहानी हम सब जानते हैं, Because as we know the story of 10 virgins, और इस तरह की और बहुत सारी स्टोरीज हैं. and there are so many other examples in the Bible. क्योंकि कलाम में लिखे कि बहुत सारे लोग आए, बुलाए तो बहुत सारे गए हैं, लेकिन बरगजीदा कितने हैं जी? बहुत थोड़े हैं. Because the word of God says that many are called, but not everyone is chosen. बहुत सारे लोग दावे करेंगे कि खुदा मैंने तेरे लिए मौजज़ात किए, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने वो किया, लेकिन खुदावंद कहेगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं थी, मैं तुम्हें जानता ही नहीं. Because many will say that God, we did this for you, we did miracles for you, we healed the sick for you, and the Lord will say, I never knew you. मेरे जीजो, My brothers and sisters, जैसे मैंने कहा कि हम एक दूसरे की ऐबजुइयां और एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद कर दें. as I said, that stop talking against each other. आप खुदा से बरकत नहीं पा रहे. You won't be blessed. मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को शेयर करूंगा कि मैंने कुछ YouTube पे ऐसे लोग देखे हैं जो पूरा टाइम चैनल बना के लोगों के खिलाफ बातें करते हैं. It's really sad that I've seen some people on YouTube and they would specially make a channel and they would spend their time talking against other people. और उनके इस ऐसे गलत रवैये को लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं कि लोग शायद चटपटी और ऐसी गलत बातों को पसंद करते हैं सुनना और उनको हवा देना पसंद करते हैं. And those channel and those people are getting so many views that tells us that people like listening to those things. लोगों पर कीचड़ उछालना और लोगों की जिंदगी में मदाखलत करना छोड़ दें. Stop doing that. Stop saying wrong things about others. It's between them and God. And start staying with the Lord. आप इन चीजों से बरकत नहीं पा रहे. You are not being blessed by this. अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद के कलाम की खुशखबरी को हकीकी तौर पर लोगों तक पहुंचाएं तो खुदा के एलची बन जाएं.
If you really want to spread the word of God, then stay in his presence and he will tell you. वरना ऐसा ना हो कि जब वक्त आए तो अव्वल आखिर हो जाएं, जो आगे आगे चल रहे थे वो पीछे चले जाएं और पीछे वाले गैर कौमों से आकर आपकी जगह आगे आकर खड़े हो जाएं। Because when the time will come, maybe you will be the last, and those who are from other nations and didn't even know Jesus and accepted him will be the first. फरिश्ता उड़ रहा है आसमान पर, आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है। The angel is in the mid-air and he is proclaiming the good news. और ये कलाम की खुशखबरी आपको अब आने वाले वक्त में और गुजरे वक्त में वो कंटिन्यू सुना रहा है। And he is proclaiming the good news for a very long time. जो लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं वो बरकत पाते हैं, और जो नहीं करते वो लानत का सबब बनेंगे। Those who accept it get blessed, and those who does not accept it and keep doing those things they're not supposed to do, they won't be blessed. मेरे अजीजों, खुदा ने आपको वक्त दिया है, खुदा ने आपको जिंदगी दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। My brothers and sisters, God has given you life. He has given you time. He has given you a chance to repent. और स्पेशली वो लोग जो YouTube चैनल पर लोगों के खिलाफ कीचड़ उछालते हैं, प्लीज मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को छोड़कर कलाम को फैलाना शुरू करें। And those, especially those who are taking time to say wrong things about others and taking time to spread bad rumors about others, it's my humble request that stop doing that and start spreading the word of God. Start spreading the good news. किसी की जिंदगी से आपको लेना देना नहीं है। कोई अगर गलत है तो कलाम में लिखा है बदला लेना मेरा काम है, तेरा नहीं है। You have nothing to do with anyone's life. The word of God says that that it's my responsibility to take revenge. It's not your responsibility. If someone is wrong, leave them in God's hand, please. खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। That's what Jesus did. यीशु मसीह ने जब सलीब को एक्सेप्ट किया तो उसने, हालांकि बागे गतसमनी में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर मैं चाहता तो अपने बाप से फरिश्तों के 12 तुम्मन मंगवा सकता था। That's what Jesus did when he was in the garden of Gethsemane. He said, if I wanted, when Peter tried to cut the ear, he said, if I wanted, I would have called I would have asked my Father, and he would have sent me thousands of angels. खुदावंद यीशु मसीह को अरेस्ट करना किसी की जरूरत नहीं है और ना को कर सकता था। Nobody could arrest Jesus. Nobody had that much power. लेकिन उसकी ये हलीमी और फरोतनी और वो एक बड़ा इंतजाम जो सलीब पर जाके उसने उस कुर्बानी को सरंजाम देना था, जिसे मैं और आप बचाए गए हैं, ये जरूरी था। But for him, fighting was not important. For him, trying to prove was not important. We were important to him. He was seeing us, that because of cross we will be saved. That was his purpose. खुदावंद ने आपको नॉलेज दिया है, खुदा ने आपको इल्म दिया है, खुदा ने आपको खूबसूरत शक्ल दी है। God has given you knowledge. God has given you life. God has given you wisdom to carry on his word. और उस इल्म और नॉलेज को अपनी सारी आपने, खुदा ने जो आपको इल्म दिया उसे एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। The knowledge that God has given you, please use it for his glory. अगर आप करेंगे तो यकीनन मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे। If you will do, I believe that you will be blessed. शायद आपके इस गलत रवैये से कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, खुशी आपको मिलेगी, पैसे भी शायद मिलेंगे, लेकिन फॉरएवर नहीं। Maybe by making these videos, maybe by doing these things, many people will appreciate you. You might even get money because you are getting so many views, but God is not happy. सो खुदावंद आपको बरकत दे, और इस खुशखबरी को जो आज हमने इतनी डिटेल में नहीं लेकिन हम आप तक इस कलाम को पहुंचाने में कोशिश की हमने, सो इस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। So it's my humble request that perceive the word of God, understand what we've shared today with you, maybe not in so much detail, but we have tried to get the word, the good news to you, and be blessed. उसे अपनी जिंदगी में जगह दे। Give it place in your hearts. खुदावंद आपको बरकत दे। May God bless you all. आइए हम दुआ करें। Let's pray. खुदावंदों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं Lord, we thank you हर लम्हा और हर घड़ी के लिए। for every single second, for every single minute.
खुदावन जो तू हमें सांसें अता करता है, Lord, you give us a breath हमें तूने जिंदा और जिंदों की जमीन पर रखा खुदावन। that you've kept us alive. जो हमसे पहले जा चुके हैं शायद हम उनसे अच्छे नहीं हैं, Those who have left before us were not better than them. लेकिन खुदावंद अगर तूने हमें जिंदगी दी है तो खुदावंद तू हमसे कुछ चाहता है कि हम उस मकसद को पूरा करें जिस मकसद के लिए तूने हमें भेजा है। But Lord, help us to fulfill what God has given us. मैं अपनी तमाम मसीही कौम के लिए Lord, I pray for the whole nation of our Christians. बरकत चाहता हूँ खुदावंद, Lord, I ask you to bless each one of जहां us. जहां पर भी खुदावंद तेरे लोग आबाद हैं, Lord, wherever your people are, खुदावंद तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर मदद कर, Lord, you raise your right hand. और खास तौर मसीही कौम पाकिस्तान में जो मौजूद है, Especially those who are in Pakistan. खुदावंद तो अपना दाहिना हाथ बढ़ा और उन्हें मुश्किलात और परेशानियों से रिहाई बख्श दे। Lord, you stretch your right hand towards them, Lord, and you bless them and you deliver them from these problems. खुदावंद जो गैर कौमों से वे दुख उठा रहे हैं खुदावंद, Lord, they are carrying persecution from other nations. खुदावंद उन पर अपना रहम और फजल वाला हाथ रख और रिहाई बख्श दे। Lord, you keep your hand upon them. अकल और दनाई से मामूर कर ताकि खुदावंद तेरे कलाम की खुशखबरी को फैलाएं। Lord, fill them with wisdom so that they would share your word. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। Lord, we thank you. खुदावंद तू मुझे और मेरी सारी टीम को और हमारी इस खुदावंद मिनिस्ट्री को खुदावंद तो अपने हाथ में ले, Lord, keep us and our team and this ministry in your hand ताकि खुदावंद जो जिम्मेदारी तूने हमें दी हम खुदावंद इसे ईमानदारी से निभा सकें। so that the responsibility that you've given us, Lord, we could carry it faithfully. मिन्नत को सुन और कबूल कर मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। Lord, listen to our prayers and answer. In Jesus' name we ask. Amen. खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम दूसरों के कर्ज मुआफ़ करते तू भी बख्श। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही हो। आमीन। खुदा बाप, बेटा और कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। May the Lord bless you all. लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। I want to request you all, जैसे कि आप लोग हमारा YouTube चैनल भी देख रहे हैं as you guys are watching our YouTube channel as well, और मुख्तलिफ ममालिक से लोग और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग जो खुदा हमें दे रहा है और वो हमारे पास आते हैं, people from different countries and people who speak different languages come to us और वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात आपके सामने रखते हैं and they put their experiences in front of you. और किस तरह खुदा ने उन्हें मुश्किलात और परेशानी से निकाल कर एक सरफराजी अता की, And how God took them out and blessed them through their problems. इन फ्यूचर बहुत जल्द हमारा प्लान है कि हम एक बड़ा एक स्टूडियो और एक सेटअप बनाएं जहां पर बहुत सारे लोग जो भी हमारे पास वेटिंग लिस्ट में हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं, वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर आकर खुदा उनका कलाम बयान करें। It's our vision to make a youth studios for those people so that they can come and share the word of God. अभी ये सारा सेटअप जो हम अपने घर पर कर रहे हैं ये लोगों के लिए इनफ नहीं है What we're doing right now in our house, it's not enough. और हम दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद एक बड़ी जगह और ज्यादा इससे अच्छी और बेहतर जगह हमें अता करे। And we're praying that God would provide a bigger place for us. और जो हमारे प्रोजेक्ट हैं आने वाले वक्त में And our projects that are coming पाकिस्तान में मसीही लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए, in Pakistan for education and for other reasons, श्रीलंका के लिए, थाईलैंड के लिए for Sri Lanka and Thailand, और नाइजीरिया के लिए, for Nigeria. मुख्तलिफ ममालिक जिसका खुदावंद ने हमें विजन दिया हम उन पर काम कर रहे हैं। These different countries that God has given us, we want to work on that. और do those आपकी things. दुआओं की जरूरत है। And we need your prayers. मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जब बहुत सारे मेरे बहन भाई दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए तो मैं बहुत ब्लेस्ड होता हूँ। In the WhatsApp group that we made, when so many people pray in that group, I am blessed. बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट मेरे साथ राब्ता करते हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में आएं और वहां पर एक दूसरे के साथ अपनी मुश्किलात को शेयर करें और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करें और वो बहुत ही
बायस बरकत है। Those who directly contact me, I request you all that come to our WhatsApp group and get prayed for and pray for others. और मेरी ये कोशिश है कि मैं जितने भी मेरे बहन भाई पाकिस्तान में मुसीबत में हैं, मुश्किलात में हैं, मैं उनकी मुश्किल में उनका साथ दे सकूं। बेशक मैं सारी दुनिया को तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे इख्तियार में है, मैं उसके लिए 100% अपना देता हूं। I want to help those who are suffering in Pakistan, and though I cannot help the whole world, but I'm doing what I can do. और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, थाईलैंड में और श्रीलंका में ऑल्सो, Not just in Pakistan, but in other places as well. बट मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि खुदा रास्ते हमवार करे और खुदा लोग मुहैया करे, लोग जो दुआ करें हमारे लिए, ताकि खुदा इस बड़े काम को करने की हमें तौफीक दे। I want your prayers. I need your prayers, so that the Lord would provide us team, provide us people, so that we can carry this vision and carry this project. और प्लीज़ डायरेक्ट मेरे साथ या हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं उनके साथ रब्ता करने की ना कोशिश करें आप व्हाट्सएप में, क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट या रब्ता करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, 0% भी। So don't try to contact our guests directly, or try to contact me directly, because that won't do anything. क्योंकि अगर मेरे साथ करते हैं तो मुझे पता है अपने लोगों का, लेकिन गेस्ट जो हैं वो कुछ भी नहीं इस मामले में कर सकते, क्योंकि वो एक मकसद के लिए आते हैं, वो पूरा करके चले जाते हैं। And if you will contact me, I know you people, but our guests, they just come for one reason, they fulfill it and they go. और कभी भी वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए प्लीज़, मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आपके लोग जो हमारे साथ रब्ता करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह ना करें, क्योंकि मतलब खुदा के काम में रुकावट पैदा होती है। And I request you all that don't do that, because that will create problems in the work of the Lord. सो खुदावंद आपको बरकत दे, मेरी दुआएं आप सब के लिए हैं। May God bless you all, and my prayers are with you all. और हमारे इस टॉक शो को जिसे स्मरणा चला रही हैं, जो इसके लिए दुआ करें कि खुदावंद और इसे अच्छा और बेहतर करे। Pray for the talk show as well and everything that we are doing. खुदावंद आपको बरकत दे। May God bless you all. थैंक यू सो मच। Thank you so much.